برج حمل یہ مہینہ کیریئر کے حوالے سے میش کے لوگوں کے لیے ملے جلے نتائج کا حامل رہے گا۔ زحل اب کے 10ویں گھر میں موجود ہے اور اس کی اپنی نشانی زحل کی رجت پسندی کی حالت میں موجودگی بھی میش کے باشندوں کو کیریئر کے لحاظ سے پریشان کن نتائج دے گی۔ خاص طور پر نجی ملازمت میں کام کرنے والے مقامی لوگوں کو کام کی جگہ پر کچھ رکاوٹوں کا سامنا کرنا پڑے گا۔ یہ مہینہ کام کرنے والے ملازمین کے منفی رویے کا بھی اشارہ دے رہا ہے جو انہیں پریشانی کا باعث بن سکتا ہے۔ ایسی صورتحال میں آپ کو پرسکون اور مرتب رہنے کا مشورہ دیا جاتا ہے۔ تاہم ملٹی نیشنل کمپنی میں کام کرنے والے مقامی افراد کو اس ماہ فوائد ملیں گے۔ کاروبار سے وابستہ میش کے باشندوں کو اس ماہ غیر ملکی یا غیر ملکی کمپنیوں کی طرف سے پیشکش مل سکتی ہے۔ اس ماہ غیر ملکی کمپنیوں کے ساتھ کاروبار چلانے سے آپ کا کاروبار بڑھے گا اور یہ آپ کے کاروبار کو ایک نئی سمت دے گا۔ آپ کو اس موقع سے بہترین فائدہ اٹھانے اور اپنے ذرائع اور رابطوں کو بڑھانے کی کوشش کرنے کی ضرورت ہے۔ میش کے لوگوں کے لیے یہ مہینہ مالی لحاظ سے اچھا رہے گا۔ مریخ آپ کے نشان کے دوسرے گھر میں موجود ہے۔ یہ سیاروں کی پوزیشن مالی فوائد کی نشاندہی کر رہی ہے، جس کی وجہ سے آپ کو کہیں سے غیر متوقع طور پر رقم مل سکتی ہے، لیکن آپ کو یہ رقم مستقبل کے استعمال کے لیے بچانے کی ضرورت ہے۔ اس کے علاوہ مالیات کا فائدہ مند زہرہ اس ماہ سورج کے ساتھ منتقل ہو رہا ہے۔ یہ اتفاق آپ کو کچھ غیر متوقع رقم کمانے کی اجازت دے گا۔ خاص طور پر اگر آپ نے ماضی میں کسی کو رقم ادھار دی تھی تو اس مہینے میں آپ کو واپس کر دی جائے گی۔ مجموعی طور پر ستمبر مالیاتی زندگی کے لحاظ سے آپ کے لیے سازگار مہینہ ثابت ہوگا۔ آپ کو اس مدت سے فائدہ اٹھانا چاہیے اور کسی پالیسی یا کم رسک والی سرمایہ کاری میں سرمایہ کاری کر کے اپنے مستقبل کو محفوظ بنانا چاہیے۔ یہ مہینہ میش کے لوگوں کے لیے صحت کے محاذ پر کچھ چیلنج لے کر آ سکتا ہے۔ آپ کے چھٹے گھر میں عطارد کی موجودگی کسی قسم کے حادثے یا چوٹ کے خطرے کی نشاندہی کرتی ہے۔ آپ کے چھٹے گھر پر چاند اور مشتری کے پہلو کی وجہ سے آپ کو معمولی بیماریوں کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ بدلتے موسم کی وجہ سے اپنی صحت کا خیال رکھیں۔ اس کے علاوہ اگر خاندان کا کوئی فرد پہلے سے بیمار ہے تو اس دوران ان کا خاص خیال رکھیں۔ کچھ مقامی لوگ اس ماہ دوبارہ اپنی سابقہ بیماری کا شکار ہو سکتے ہیں۔ تاہم جب سورج مہینے کے آخر میں چھٹے گھر میں عطارد کے ساتھ مل جائے گا تو حالت بہتر ہو جائے گی۔ چھٹے گھر میں سورج اور عطارد کی آمد سے آپ کو صحت سے متعلق فوائد حاصل ہوں گے، جس کی وجہ سے آپ اپنی جسمانی پریشانیوں سے کچھ راحت حاصل کر سکیں گے۔ میش سے محبت کرنے والوں کے لیے یہ مہینہ بہت مثبت رہے گا۔ محبت کا محسن زہرہ آپ کے 5ویں گھر میں موجود رہے گا، جو اس نشانی کے عاشقوں کی محبت کی زندگی میں سازگار نتائج لائے گا۔ لیکن ایک ہی وقت میں آپ کے 5ویں گھر میں سورج کی موجودگی کی وجہ سے آپ کے رویے میں تبدیلی آئے گی، جس سے آپ کے تعلقات میں تلخی آئے گی۔ اس صورتحال میں اپنے محبوب سے بات کرتے ہوئے محتاط رہیں، تبھی آپ اپنے رشتے میں محبت کو بڑھا سکیں گے۔ شادی شدہ میش کے باشندوں کے 7ویں گھر میں سایہ دار سیارہ کیتو کی موجودگی میاں بیوی کے درمیان جھگڑے کو جنم دے سکتی ہے۔ اپنے جارحیت کے بڑھنے کے امکانات ہیں، لہذا آپ کو اپنے غصے پر قابو رکھنا چاہیے اور ایک دوسرے کو سمجھنے کے لیے ایک ساتھ وقت گزارنا چاہیے۔ دوسری صورت میں آپ کسی غلط فہمی کی وجہ سے اپنی ازدواجی زندگی کی خوشیوں سے خود کو محروم کر سکتے ہیں۔ برج ثور یہ مہینہ کیریئر کے لحاظ سے برج کے لوگوں کے لیے سازگار رہے گا۔ آپ کے 9ویں اور 10ویں گھر کا حاکم زحل اپنی ہی نشانی میں منتقل ہو کر آپ کے قسمت کے گھر میں داخل ہوگا، جس کی وجہ سے اس رقم کے تحت کام کرنے والے ملازمین پر پورا مہینہ قسمت کی مہربانی رہے گی اور اس کے امکانات ہوں گے۔ آپ کی ترقی، مقامی لوگوں کو اپنے بزرگوں کا تعاون حاصل ہوگا اور ان کی تنخواہ میں اضافہ ہوگا۔ یہ وہ وقت ہوگا جب کام پر آپ کا دشمن آپ کا دوست بن جائے گا اور آپ کی ٹیم کے ارکان میں آپ کی تعریف کی جائے گی۔ اس کے باوجود آپ کو مغرور ہونے سے گریز کرنا چاہیے، ورنہ یہ آپ کی ساکھ کو نقصان پہنچا سکتا ہے۔ اس کے علاوہ آپ کے 10ویں گھر پر سورج اور زہرہ کے پہلو کی وجہ سے جو مقامی لوگ کوئی کاروبار شروع کرنا چاہتے ہیں یا پہلے سے کسی کاروبار سے وابستہ ہیں، انہیں اس ماہ نئے مواقع ملیں گے۔ وہ اپنے کاروبار کو وسعت دیں گے اور مارکیٹ میں عزت کمائیں گے۔ آپ کے کرم گھر پر زہرہ کا پہلو اس بات کی نشاندہی کرتا ہے کہ یہ مہینہ خوبصورتی، فنون اور فیشن سے وابستہ لوگوں کے لیے بہت اچھا ثابت ہونے والا ہے۔ اس دوران ان کی آمدنی کے ذرائع بڑھیں گے اور انہیں کیریئر کے نئے مواقع ملیں گے۔ مالیاتی محاذ پر برج کے لوگوں کو ملے جلے نتائج حاصل ہوں گے۔
آپ کے دوسرے گھر کا مالک عطاد ماہ کے شروع میں آپ کی نشانی کے 5ویں گھر میں منتقل ہو رہا ہے اور سایہ دار سیارہ کی تو آپ کے ذائچہ کے 6 گھر میں موجود ہے۔ یہ آپ کی مالی پریشانیوں کی وجہ بن سکتا ہے۔ آپ کو اپنے مالی معاملات سے متعلق اہم فیصلے لینے میں پریشانی کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ اس وقت کے دوران آپ کے اخراجات آپ کی آمدنی سے زیادہ ہو جائیں گے اور آپ کو مشورہ دیا جاتا ہے کہ بہت دیر ہونے سے پہلے ان اخراجات پر قابو پال۔ لیکن جب مہینے کے آخری نصف میں سورج عطارد کے ساتھ مل جائے گا تو آپ کی مالی حالت کافی حد تک بہتر ہو جائے گی۔ اس دوران آپ کو مالیاتی فائدہ بھی حاصل ہو سکتا ہے۔ آپ کی آمدنی کے ذرائع بڑھیں گے۔ بیرونی تجارت سے وابستہ مقامی لوگوں کے لیے یہ وقت خاص طور پر سازگار رہے گا۔ راہو اس مدت میں آپ کے 12ویں گھر میں منتقل ہو رہا ہے۔ اس دوران آپ غیر ملکی ذرائع سے منافع کمائیں گے۔ اس کے ساتھ اگر آپ کسی غیر ملکی پروجیکٹ پر کام کر رہے ہیں تو آپ اس کے ذریعے اچھا منافع کمائیں گے۔ ستمبر 2022 صحت کے لحاظ سے برج کے لوگوں کے لیے پریشان کن رہے گا۔ آپ کے 6 گھر میں کیتو کی موجودگی اور 12ویں گھر میں راہو کی موجودگی آپ کو صحت کے مسائل دے گی۔ اس کی وجہ سے آپ کی صحت خراب ہو جائے گی اور آپ کو معمولی بیماریاں لاحق ہو سکتی ہیں۔ لہذا اپنی صحت کا خیال رکھیں اور جو لوگ پہلے ہی بیماری میں مبتلا ہیں وہ اس ماہ کسی اچھے ڈاکٹر سے ضرور رجوع کرے۔ یہ مہینہ ورشب سے محبت کرنے والوں کے لیے ملے جلے پھلوں کا حامل رہے گا۔ آپ کے 5ویں گھر میں عطارد کی موجودگی اور اس پر مشتری کا پہلو آپ کی محبت کی زندگی میں کچھ مسائل کو جنم دے گا۔ اس صورتحال میں کسی غلط فہمی کو اپنے رشتے کی راہ میں حائل نہ ہونے دیں ورنہ ایک معمولی جھگڑا مستقبل میں بڑی لڑائی کی شکل اختیار کر لے گا۔ لیکن جب مہینے کے دوسرے نصف میں سورج آپ کے 5ویں گھر میں عطارد کے ساتھ منتقل ہوگا تو آپ کی محبت بڑھے گی۔ اس کی وجہ سے آپ اپنے تمام مسائل حل کر لیں گے اور اپنے تعلقات کو اگلے درجے تک لے جانے کا فیصلہ کر سکتے ہیں۔ جہاں تک شادی شدہ ورشب کے باشندوں کا تعلق ہے، آپ کے 7ویں گھر کے مالک مریخ کی آپ کے پہلے گھر میں موجودگی اور 7ویں گھر میں اس کے پہلو کی وجہ سے آپ اور آپ کی شریک حیات کے درمیان جھگڑے ہو سکتے ہیں۔ اس دوران آپ دونوں اپنے آپ کو برتر سمجھیں گے اور دوسرے کو اہمیت نہیں دیں گے، لیکن آپ کو مشورہ دیا جاتا ہے کہ ایسا کام نہ کریں۔ اس لیے بہتر ہوگا کہ غصہ اور تکبر ترک کر کے رشتے کو اہمیت دیتے ہوئے ایک دوسرے کو سمجھیں۔ برج جوزا جیمنی لوگوں کے لیے یہ مہینہ کیریئر کے لحاظ سے اچھا رہے گا۔ آپ کے 10ویں گھر کا حاکم مالک مشتری اپنی ہی نشانی میش میں منتقل ہو رہا ہے۔ اس کی وجہ سے آپ کو اپنے کیریئر میں کچھ شاندار مواقع ملیں گے۔ کاروبار سے وابستہ لوگوں کے لیے یہ مہینہ خاص طور پر سازگار رہے گا۔ سروس میں مقامی لوگوں کو اس دوران ترقی مل سکتی ہے، لیکن کام کا بوجھ زیادہ ہوگا جو ذہنی تناؤ کا باعث بن سکتا ہے۔ اس سلسلے میں اپنا کام پورے دل سے کریں لیکن زیادہ دباؤ نہ لیں ورنہ آپ کے کام کی پیداواری صلاحیت متاثر ہوگی۔ مشتری کا رخ آپ کے 10ویں گھر پر پڑ رہا ہے جس کی وجہ سے آپ کی آمدنی میں اضافہ ہوگا، لہذا صورتحال کا فائدہ اٹھائیں اور کام کی جگہ پر کسی کے ساتھ تنازع میں نہ پڑیں۔ مہینے کے دوسرے نصف میں سورج عطارد کے ساتھ مل جائے گا اور آپ کے 4تھے گھر میں داخل ہوگا۔ سورج کا رخ بھی آپ کے 10ویں گھر پر ہوگا جس کی وجہ سے جو لوگ بیرون ملک جانا چاہتے ہیں انہیں غیر ملکی کام کے سفر پر جانے کا موقع ملے گا اور وہاں بہت سے اچھے مواقع ملیں گے۔ یہ مہینہ جیمنی باشندوں کی مالی زندگی میں مثبت نتائج لائے گا۔ مشتری آپ کی نشانی کے 10ویں گھر میں موجود ہے اور زحل اپنی علامت میں موجود ہے اور دوسرے گھر میں اس کا ایک پہلو ہے جس کی وجہ سے آپ کو مالی فائدہ حاصل ہو سکتا ہے۔ آپ مختلف ذرائع سے رقم حاصل کریں گے اور اپنی آمدنی کے ذرائع میں اضافہ کریں گے۔ یہ آپ کو اپنے تمام سابقہ مالی مسائل سے نجات دلانے میں مدد کرے گا اور آپ اپنے پیسے بچا کر اپنا مستقبل محفوظ کر لیں گے۔ کچھ مقامی لوگوں کو اس ماہ غیر متوقع رقم مل سکتی ہے۔ اگر آپ نیا کاروبار شروع کرنا چاہتے ہیں یا اپنے موجودہ کاروبار میں سرمایہ کاری کرنے کا ارادہ کر رہے ہیں تو یہ مدت آپ کے لیے بہت سازگار ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ امپورٹ ایکسپورٹ سے وابستہ مقامی لوگ بھی اس وقت اچھا منافع کما سکتے ہیں۔ یہ مہینہ صحت کے لحاظ سے جیمنی والوں کے لیے سازگار رہے گا۔ آپ کے 6 گھر کا مالک مریخ آپ کی نشانی سے 12ویں گھر میں موجود ہوگا اور آپ کی صحت کی وجہ سے آپ کو اچھے نتائج دے گا۔ مریخ کی یہ پوزیشن آپ کو صحت کے بہت سے مسائل سے نجات دلائے گی، خاص طور پر اگر آپ ماضی میں کسی بیماری میں مبتلا رہے ہوں تو وہ اس وقت مرجھا جائے گا۔ اس ماہ اپنی سخت صحت کی وجہ سے آپ اپنی زندگی سے لطف اندوز ہوں گے۔
सितंबर 2022 जीमनी बाशिंदों की मोहब्बत की जिंदगी के लिए मिले जले नताइज से भरा होगा। आपके पांचवीं घर में कीटों की मौजूदगी और इस पर राहु का पहलू इस महीने आपकी मोहब्बत की जिंदगी में कुछ गलत फहमियों को जन्म देगा। इसकी वजह से जीमनी से मोहब्बत करने वाले अपने पार्टनर्स पर शक करते नजर आएंगे, जिसकी वजह से रिश्ते में मोहब्बत की कमी होगी। इसलिए कोशिश करें कि किसी बाहर की राय पर ध्यान न दें और अपने साथी पर शक करने के बजाय मुनासिब बातचीत के जरिए अपने मसाइल हल करने की कोशिश करें। सिर्फ ऐसा करने से ही आप अपने रिश्ते में प्यार वापस ला सकेंगे। शादीशुदा जीमनी वालों के लिए भी ये महीना कम साजगार रहेगा। आपके सातवें घर में जोहल की मौजूदगी आपकी इज़्दिवाजी जिंदगी में उतार चढ़ाव लाएगी। इसकी वजह से आप और आपके शरीक हयात के दरमियान अक्सर झगड़े होते रहेंगे। इस सूरत हाल में सब्र से काम लें और अपने मसाइल से छुटकारा पाने के लिए एक दूसरे पर एतमाद करें। ये महीना जीमनी बाशिंदों की खानदानी जिंदगी में मिले जले नताइज देगा। इस माह आपके तीसरे घर में सूरज और जोहरा का मिलाप आपको आपके छोटे बहन भाइयों का ताउन फराहम करने में काम करेगा। इसकी वजह से आपको उनकी मोहब्बत मिल जाएगी और वो घर में खुलकर आपका साथ देते नजर आएंगे। अगर आप और आपके बहन भाइयों के दरमियान तनाज़ा चल रहा था तो इस वक्त के दौरान उसे हल कर लिया जाएगा और आप उनके साथ अपने ताल्लुकात को मजबूत बनाएंगे। ताहम मुश्तरी आपके 10वें घर में मौजूद है और जोहल आपकी निशानी के मुख्तलिफ घरों पर एक पहलू रखता है, जिसकी वजह से घर में हम आहंगी और बदअमनी का फुकदान रहेगा। इस सूरत हाल में आपको घर में पुरअमन माहौल बरकरार रखने की कोशिश करनी चाहिए और कोई भी काम करने से पहले बड़े मेंबरान से मशवरा जरूर लेना चाहिए। बुर्ज सरतान, ये महीना कैरियर के हवाले से कैंसर वालों के लिए साजगार रहेगा। जोहरा इस वक्त के दौरान आपके दूसरे घर में सूरज के साथ गुजरेगा और जोड़ देगा, जो आपको महीने के पहले निस्फ में अच्छे करियर के मौके फराहम करेगा। आप काम की जगह पर अपने तमाम ज़ेर इल्तिवा काम मुकम्मल कर लेंगे, जिससे आपके साथियों में आपकी इज्जत बढ़ेगी। बैरून मुल्क से वाबस्ता अफराद को भी इस माह खुशखबरी मिलेगी। इम्कानात ये हैं कि कोई गैर मुल्की प्रोजेक्ट गुजर जाएगा। अगर आप गैर मुल्की दौरे पर जाना चाहते हैं तो आपको बैरून मुल्क कारोबारी दौरे पर जाने का मौका मिल सकता। कुंसर के कारोबार करने वालों के लिए ये अरसा मामूल से बेहतर रहेगा। वो अपने कारोबार को वसअत देकर अपने करियर में तरक्की करेंगे। अगर आप इंपोर्ट एक्सपोर्ट से वाबस्ता हैं तो ये मुद्दत आपके गैर मुल्की ज़राए में इजाफा लाएगी। महीने के आखिरी निस्फ में सैयारों की पोजीशनों में तब्दीली आपको मजीद ताकत देगी और आपको करियर के बहुत ज्यादा मौके मिलेंगे। इसके बावजूद तुम्हारी तबीयत मुतकब्बिर होगी। आपको अपने करियर और किस्मत की वजह से मगरूर होने से बचने की कोशिश करनी चाहिए, वरना आप बहुत से साजगार मौके से महरूम हो जाएंगे। कैंसर के लोगों को इस मालियाती शोबे में अच्छे नताइज मिलेंगे। जोहरा माह के पहले निस्फ में आपके दूसरे घर में सूरज के साथ मुंतकिल होगा। जोहरा और सूरज की मुश्तरक मौजूदगी आपको अपनी तमाम माली परेशानियों से निजात दिलाएगी और आपकी माली हैसियत को मजबूत करेगी। आप अपनी आमदनी के ज़राए में इजाफा करेंगे और अच्छी रकम कमाएंगे। वो तमाम हिकमत अमली जो आपको मालियात की कमी की वजह से रोकनी पड़ी वो दोबारा शुरू हो जाएंगी और आपको कामयाबी मिलेगी। लेकिन आपके दूसरे घर पर मरीख का पहलू आपकी आमदनी में कमी का बाइस बनेगा। आपको अपने अखराजात में इजाफे की वजह से भी परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। आपको मशवरा दिया जाता है कि इस दौरान अपने अखराजात पर काबू रखें। ये महीना सेहत के लिहाज से कैंसर वालों के लिए मिले जले नताइज लाएगा। आपके छठे घर का मालिक मुश्तरी आपके 9वें घर में मुंतकिल हो रहा है। इस दौरान सूरज और जोहरा आपके 8वें घर में रुख करेंगे, जिसकी वजह से आपको सेहत के बड़े मसाइल का सामना नहीं करना पड़ेगा, लेकिन आप पूरे महीने में छोटी मोटी बीमारियों का शिकार रहेंगे। इसलिए इस दौरान अपनी सेहत का खास ख्याल रखें। खास तौर पर पेट से मुतालिक मसाइल इस वक्त आपको परेशान करेंगे। आपको अपनी खाने की आदत पर तवज्जो देनी चाहिए और मसालादार और जंक फूड से परहेज करना चाहिए। मकामी लोगों को जो पहले से ही सेहत के मसाइल से दोचार हैं, उन्हें इस माह अपनी सेहत के हवाले से मोहतात रहने की ज़रूरत है। कैंसर के लोगों को इस माह अपनी मोहब्बत की जिंदगी में मिले जले नताइज हासिल होंगे। जोहल अपने मकर की अलामत में मुंतकिल होगा और 7वें घर में मौजूद होगा, जिसकी वजह से अहल वतन के मोहब्बत के रिश्तों में गलत फहमियां पैदा होंगी। ये आपके और आपके महबूब के दरमियान फासले पैदा करेगा और आप अपनी जिंदगी में मोहब्बत और रोमांस की कमी महसूस करेंगे। कुछ मकामी लोग मुखालिफ जिन्स के दूसरे लोगों की तरफ मुतवज्जे महसूस कर सकते हैं, लिहाजा
یہ بہتر ہوگا کہ آپ اپنے تمام مسائل کو صحیح طریقہ سے بروقت حل کریں۔ اس دوران شادی شدہ کینسر کے لوگوں کے درمیان تنازعات بڑھ سکتے ہیں، اس وجہ سے ایک دوسرے کی وفاداری پر شک نہ کریں اور غیر ضروری بحثوں سے گریز کرتے ہوئے اعتماد کے ساتھ اپنے تعلقات کو آگے بڑھائیں۔ اگر آپ کو اب بھی شک ہے تو اپنے جیون ساتھی کے ساتھ براہ راست ان کو دور کریں۔ صرف ایسا کرنے سے ہی آپ اپنی ازدواجی زندگی کو بہتر بنا سکیں گے اور ذہنی تناؤ کو دور کر سکیں گے۔ کینسر کے لوگوں کو اس ماہ خاندانی زندگی کے لحاظ سے مثبت پھل ملے گا۔ ماہ کی پہلی ششماہی میں سورج آپ کے دوسرے گھر میں زہرہ کے ساتھ گزرے گا اور آپ کے خاندان کے گھر میں سورج کی موجودگی آپ کی خاندانی زندگی کے لیے فائدہ مند ہوگی۔ آپ گھر میں ہم آہنگی کا تجربہ کریں گے اور خاندان کے افراد کی حمایت حاصل کریں گے۔ آپ کو گھر میں وہ عزت ملے گی جس کا آپ ماضی سے انتظار کر رہے ہیں۔ تاہم جب مہینے کے آخری نصف میں سورج آپ کے تیسرے گھر میں منتقل ہوگا تب وہاں موجود عطارد سورج کے ساتھ مل کر بدھا دتیہ یوگا بنائے گا اور اس کی وجہ سے آپ کو اچھے نتائج حاصل ہوں گے۔ آپ اس عرصے میں اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ مذہبی سفر پر بھی جا سکتے ہیں جہاں آپ ان کے ساتھ وقت گزاریں گے اور ان کی زندگی کے کچھ معاملات کے بارے میں جان سکیں گے۔ برج اسد لیو کے نشان میں پیدا ہونے کی وجہ سے آپ انصاف پسند ہیں جو اپنے کام کو مکمل اختیار کے ساتھ مکمل کرنا پسند کرتے ہیں۔ اس ماہ آپ کو اپنے کیریئر میں اچھے نتائج ملیں گے۔ مہینے کے آخری نصف میں آپ کے 10ویں گھر کا مالک کنیا میں منتقل ہوگا اور آپ کے دوسرے گھر میں داخل ہوگا جو آپ کو آپ کے کیریئر میں اچھی پوزیشن دے گا۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ کے 10ویں گھر میں مریخ کی موجودگی اور آپ کے چوتھے گھر پر اس کا پہلو یعنی آسائشوں اور گاڑیوں کا گھر گاڑی یا مکان کی خریداری کا اشارہ دے رہا ہے۔ اس سے آپ کو اپنے ساتھیوں کے درمیان اپنی ساکھ کو بہتر بنانے میں مدد ملے گی اور وہ آپ سے مشورہ لیں گے۔ یہ مدت آپ کو اپنی آمدنی میں اضافہ کرنے کی اجازت دے گی کیونکہ اس مدت کے دوران آپ کے اضافے کے امکانات زیادہ ہونے والے ہیں۔ لیو کاروباری افراد کے لیے بھی یہ دور اچھا رہے گا۔ اس دوران آپ کو اپنے ماتحتوں کا تعاون ملے گا جس سے آپ کو مارکیٹ میں اچھی ساکھ قائم کرنے میں مدد ملے گی۔ تاہم آپ کے مخالفین اس وقت سرگرم ہوں گے لیکن وہ آپ کو نیچے لانے میں ناکام رہیں گے۔ زیادہ سے زیادہ منافع کمانے کے لیے ضرورت پڑنے پر آپ کو بزرگوں اور ماہرین سے مشورہ لینا چاہیے۔ لیو کے لوگوں کے لیے یہ مہینہ مالی لحاظ سے اتار چڑھاؤ سے بھرا رہے گا۔ آپ کو اس مہینے میں کسی کو قرض دینے اور سرمایہ کاری کرنے سے گریز کرنا چاہیے۔ اس کے ساتھ ساتھ جو مقامی لوگ بڑی سرمایہ کاری کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں انہیں اس وقت کوئی بڑا فیصلہ لینے سے گریز کرنا چاہیے۔ اگر یہ بہت ضروری ہے تو سرمایہ کاری کرنے سے پہلے کسی سینئر یا ماہر سے مشورہ کریں۔ آپ کو یہ بھی مشورہ دیا جاتا ہے کہ اس مہینے میں اپنے آرام اور آسائش پر پیسہ خرچ کرنے سے گریز کریں۔ لیو کے باشندوں کو اس ماہ صحت کے شعبے میں ملے جلے نتائج حاصل ہوں گے۔ زحل اپنی علامت میں منتقل ہو کر آپ کے چھٹے گھر میں داخل ہوگا جس کی وجہ سے اب بدہضمی، تیزابیت، گیس وغیرہ سے متعلق مسائل کا شکار ہو سکتے ہیں۔ جن لوگوں کو ماضی میں جوڑوں سے متعلق مسائل تھے ان کی پریشانی میں اضافہ ہو سکتا ہے۔ اس مہینے اپنی صحت کا زیادہ سے زیادہ خیال رکھیں۔ مقامی لوگ جو پہلے ہی اس مرض میں مبتلا ہیں انہیں گھر پر اس کا علاج کرنے سے گریز کرنا چاہیے اور ضرورت پڑنے پر کسی اچھے ڈاکٹر سے رجوع کرنا چاہیے، ورنہ ایک معمولی مسئلہ مستقبل میں سنگین مسئلہ بن سکتا ہے۔ ستمبر 2022 لیو کے باشندوں کی محبت کی زندگی میں مثبت نتائج لائے گا۔ آپ کے 5ویں گھر کا مالک مشتری آپ کے ذائچے کے 8ویں گھر میں موجود ہے اور محبت کا محسن زہرہ اس دوران آپ کے پہلے گھر میں سورج کے ساتھ جوڑے گا۔ اس کی وجہ سے لیو سے محبت کرنے والوں کو مہینے کے پہلے نصف میں کچھ پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ اس وقت آپ کی طبیعت جارحانہ ہوگی، اس لیے آپ کو شروع سے ہی اپنے غصے پر قابو پانے کی کوشش کرنی چاہیے، لیکن جب مہینے کے آخری نصف میں سورج دوبارہ آپ کے پہلے گھر سے دوسرے گھر میں منتقل ہو جائے گا تو حالت بہتر ہو جائے گی۔ آپ اپنے رویے میں مثبت تبدیلی لائیں گے اور اپنے محبوب کے ساتھ معاملات ٹھیک کرنے کی کوشش کریں گے۔ تاہم طویل مدتی تعلقات میں رہنے والوں کو اس دوران ایک اچھا موقع ملے گا اور وہ اپنے تعلقات کو شادی کی سمت آگے لے جا سکتے ہیں۔ شادی شدہ لیو والوں کے 7ویں گھر پر سورج کا اثر رہے گا جس سے ان کی گفتگو میں نفی آئے گی۔ اس کی وجہ سے آپ غصے میں گندی زبان استعمال کر سکتے ہیں جس کا آپ کو بعد میں پچھتانا پڑے گا۔ اس لیے ایسا کام کرنے سے گریز کریں اور اپنے مصروف شیڈول سے کچھ وقت نکال کر اپنے جیون ساتھی کے ساتھ رومانوی ڈیٹ پلان کریں۔
ल्यू के बाशिंदों की खानदानी जिंदगी इसमें मिले जले रहेगी। महीने के पहले निस्फ में ज़ोहरा आपके निशान में रहेगा और आखिरी निस्फ में ये अताद के साथ अपने कमज़ोर कन्हैया के निशान में मुंतकिल होगा और नीच भंग राजयोगा बनाएगा, जिससे आपको आपके ख़ानदान के अफराद का ताअवुन मिलेगा और वहाँ ख़ानदान में माशी तरक्की होगी। आप उनकी मदद से कुछ अहम ख़ानदानी फ़ैसले लेंगे। ये मुद्दत आपको अपने ख़ानदान के अफराद के साथ वक्त गुजारने की तरगीब देगी, जिससे आपको उनकी ज़ाती ज़िंदगी में चल रहे मुख्तलिफ हालात से आगाही मिलेगी। ताहम आपके ख़ानदान के घर पर मरीख के पहलू की वजह से आपको घर में कुछ तनाज़ात का सामना करना पड़ सकता है। इस वजह से आपको ख़ानदान के अहम फ़ैसले अकेले लेने से गुरेज करना चाहिए और घर से मुतालिक कोई भी काम अहल खाना से मशवरा करने के बाद ही करना चाहिए। इसके अलावा आपको मशवरा दिया जाता है कि आप घर में रहते हुए अपने गुस्से पर काबू रखें, वरना अपना चाहते हुए भी कुछ गलत कहकर घर वालों को तकलीफ दे सकते हैं। बुर्ज सुंबुला कन्हैया वालों के लिए ये महीना कैरियर के लिहाज से साजगार रहेगा। इस वक्त आपके कैरियर में आपकी किस्मत आपके मुवाफिक रहेगी, जो आपको काम की जगह पर कामयाबी और तरक्की हासिल करने में मदद देगी। अगर आप काफ़ी अरसे से नौकरियों को तब्दील करने का सोच रहे हैं तो ये महीना आपको अच्छी तंजीमों में बेहतर मौक़े फराहम करेगा। बहुत से मकामी बाशिंदे मतलूबा मुंतकली भी हासिल कर लेंगे, लेकिन इसके लिए आपको अपने सीनियर्स के साथ अच्छे ताल्लुकात को बरकरार रखने की ज़रूरत होगी। अगर आप कारोबार से वाबस्ता हैं तो ये मुद्दत आपके लिए मुस्बत रहेगी। मकामी लोग जो कोई नया कारोबार शुरू करना चाहते हैं या अपने मौजूदा कारोबार को बढ़ाना चाहते हैं, उनके लिए इस महीने में साजगार वक्त गुजरेगा। अच्छी सैयारों की पोजीशन आपको कम कोशिशों के बावजूद अच्छा नतीजा देगी, तो इस मौका से फ़ायदा उठाएं। कन्हैया वालों के लिए ये महीना माली ज़िंदगी के लिहाज से मुस्बत रहेगा। कारोबार से वाबस्ता अफराद खुसूसन क़ियास आराई के कारोबार से वाबस्ता अफराद के लिए ये दौर साजगार रहेगा, लेकिन आपकी तेज़ी से ज़्यादा पैसा कमाने की ख्वाहिश आपको गलत काम करने पर मजबूर कर सकती है। लिहाजा लालच की वजह से गैर कानूनी मामलात में उलझने से बचें, वरना ये आपकी परेशानियों में इजाफा करेगा। इस दौरान आपको गैर मुतवक्के रकम भी हासिल हो सकती है। आपके दूसरे घर पर ज़ोहल का पहलू इस वक्त आपको बेपनाह रकम दे सकता है। मकामी लोग कुछ ज़राए से गैर मुल्की रकम हासिल करने में भी कामयाब हो सकते थे। इसके अलावा अगर आपका पैसा माजी में कहीं फंस गया था और आपको उसकी वापसी की कोई उम्मीद नहीं थी, तो आपको इस महीने मिल सकता है। कन्हैया वालों के लिए ये महीना सेहत के शोबे में मिला जला रहेगा। मकामी लोगों के लिए जो पहले से किसी बीमारी में मुब्तला हैं, इस महीने में ये मज़ीद ख़राब हो सकता है। कुछ मकामी लोग किसी नई बीमारी का शिकार हो सकते हैं। इस माह कन्हैया के लोग जोड़ों के दर्द, हड्डियों से मुतालिक अमराज वगैरह से सबसे ज़्यादा परेशान होंगे। आपके छठे घर के मालिक ज़ोहल की 5वीं घर में मौजूदगी आपकी परेशानी में इजाफा कर सकती है। दोबारा पुरानी बीमारी में मुब्तला, अगर मुमकिन हो तो सिर्फ घर का पक्का हुआ खाना खाने की कोशिश करें, लेकिन आपके दूसरे घर में कीटों की मौजूदगी की वजह से आपको कुछ जिस्मानी परेशानियों से निजात मिल जाएगी। ये महीना कन्हैया वालों की मोहब्बत की जिंदगी में मुतज़ाद नताइज लाएगा। ख़ास तौर पर रोमानवी रिश्ते में रहने वालों को अपने महबूब के गज़ब का सामना करना पड़ेगा। आपकी बुरी आदत इस महीने आपके साथी को परेशान कर सकती है, लिहाजा अपने महबूब से मुलाकात आबाद करते वक्त अच्छा बर्ताव रखें। ज़ोहल शादीशुदा बाशिंदों के 5वीं घर में पीछे हटने वाली हालत में मौजूद है। इसकी वजह से आपकी इज़्दिवाजी जिंदगी कम साजगार रहेगी। इस दौरान आपको आपके जीवन साथी को सेहत के कुछ मसाइल का सामना करना पड़ सकता है, जिसकी वजह से आप दोनों के दरमियान जिस्मानी फासला बढ़ जाएगा। आप इज़्दिवाजी जिंदगी की जिम्मेदारियों के बोझ में घिरे हुए महसूस करेंगे, जो आपको ज़हनी तनाव का बाइस बनेगा। कन्हैया के बाशिंदों की खानदानी जिंदगी के लिहाज से ये महीना मुश्किल साबित होगा। खानदान में बदअमनी आपको परेशान करेगी, लेकिन आपको वक्त पर हालात को दुरुस्त करने की ज़रूरत होगी, वरना मनफी हालात संगीन मसले की शक्ल इख्तियार कर लेंगे और आपके ज़हनी दबाव का बाइस बनेंगे। आप अपनी मर्जी के खिलाफ अपने खानदान के अफराद के साथ तनाज़ात में पड़ सकते हैं, इसलिए आपको पुरसुकून रहना चाहिए और बड़ों से मशवरा किए बगैर कोई भी फैसला लेने से गुरेज करना चाहिए। बुर्ज मीज़ान, ये महीना लिब्रा वालों के लिए कैरियर के लिहाज से मिले जले नताइज लाएगा। ज़ोहल आपके चौथे घर में मौजूद होगा
और आपके कर्मी घर का रुख करेगा। ये सैयारों की पोजीशनी और पहलू काम करने वाले मुलाजमीन की पेशा वराना जिंदगी में मसाइल पैदा करेंगे। काम की जगह पर बेहतर नताइज हासिल करने के लिए आपको ज्यादा मेहनत करने की जरूरत होगी, वरना कम पैदावारी सलाहियत आपके कैरियर को मुतासिर करेगी। इसकी वजह से आप काम की जगह पर अच्छी कारकर्दगी दिखाने में भी नाकाम हो सकते हैं। इसके अलावा आपकी निशानी के 10वें घर से ज़ोहल का पहलू भी होगा। इसके नतीजे में लिब्रा के ताजिरों को एक नागवार नतीजा मिलेगा। वो अपने काम पर तवज्जो नहीं दे पाएंगे। उनके जहनों में चल रही बेचैनी की वजह से वो मार्केट में अपने सारिफीन को मुतमईन करने में भी नाकाम रहेंगे। लिहाजा अगर आप अपने करियर में बेहतर बनाना चाहते हैं तो आपको एतमाद के साथ आगे बढ़ने की ज़रूरत है। इसके लिए मनफियत को अपना फ़ायदा न होने दें और अज़्म के साथ हर चैलेंज का मुकाबला करें। ये महीना तालिब्रा वालों की माली जिंदगी में मिले जले नताइज लाएगा। आपके दूसरे घर का मालिक मरीख उस वक्त आपके 8वें घर में मुंतकिल हो रहा है, जो इस माह आपके अखराजात में तेजी से इजाफा करेगा। इसके अलावा आपके घर पर मरीख का पहलू आपको अपनी जमाशदा दौलत का बड़ा हिस्सा ज़मीन, इमारतों वगैरह पर खर्च करने पर मजबूर कर देगा। आपके दूसरे घर पर मरीख का पहलू अचानक माली फायदा की निशानदेही कर रहा है, लिहाजा आपको अचानक किसी गैर मुतवक्के जरिया से रकम मिल जाएगी। कुछ मकामी लोग अपने खानदान, जानने वालों या करीबी दोस्तों की मदद से भी मुनाफा हासिल कर सकते हैं। ताला के बाशिंदों को इस माह सेहत के शोबे में औसत नताइज मिलेंगे। आपके छठे घर का मालिक मुश्तरी छठे घर में अपने ही मीनस के निशान में मौजूद होगा। इसकी वजह से इस महीने के दूसरे हफ्ते में आपके छठे घर में चांद और मुश्तरी की आमद आपकी निशानी में गजकेसरी योग कायम करेगी। इसकी वजह से आपको अपनी तमाम साबिका बीमारियों से निजात मिल जाएगी और आपकी सेहत बेहतर हो जाएगी। आपके अमराज के घर पर ज़ोहल का रुख आपको सेहत के मामूली मसाइल देगा, जिसके नतीजे में बदहज़मी, गैस वगैरह जैसी बीमारियां लाहिक हो सकती हैं। इसलिए आपको मशवरा दिया जाता है कि इस माह अपनी सेहत के हवाले से मोहतात रहें। ये महीना लिब्रा के लोगों की मोहब्बत की जिंदगी में साजगार नताइज लाएगा। आपके 5वें घर का मालिक ज़ोहल अपने घर से 12वें घर में मौजूद है, जिससे शिराकतदारों में मोहब्बत बढ़ेगी। ये दौर उन लोगों के लिए अच्छा रहेगा जो अपने महबूब से शादी करना चाहते हैं। महीना के पहले निस्फ में ज़ोहरा का सूरज के साथ मिलाप और आपके 5वें घर पर उनका पहलू आपको तमाम गलत फहमियों को दूर करने के काबिल बनाएगा और आप अपने आशिक के साथ कहीं जाने का इरादा कर सकते हैं। लेकिन जब सूरज महीने के आखिरी निस्फ में मुंतकिल होगा और अताब के साथ मिल जाएगा तो ताल्लुकात में मामूली तनाज़ात पैदा हो सकते हैं। इसलिए महीने के वस्त के बाद होशियार रहें और किसी भी मामले पर ज्यादा सोचने के बजाय इसे अपने महबूब से मुनासिब बातचीत के जरिए साफ करें। जहां तक शादीशुदा बाशिंदों का ताल्लुक है, आपके 7वें घर में राहु की मौजूदगी आपकी इज़्दिवाजी जिंदगी में कुछ मसाइल पैदा कर सकती है। इसकी वजह से इस दौरान आपकी जारहाना तबीयत की वजह से अहल वतन के ताल्लुकात में तलखी पैदा हो सकती है। इसलिए अपने गुस्से पर काबू रखें और अपने शरीक हयात के जज्बात को समझने की कोशिश करें। ये महीना लिब्रा के लोगों की खानदानी जिंदगी के लिहाज से अच्छा रहेगा। आपके 8वें घर में मरीख की मौजूदगी और आपके दूसरे घर में उसका पहलू आपके खानदान में सुकून लाएगा। इसकी वजह से आपको खानदानी खुशी और घर वालों का ताउन हासिल होगा। इसके साथ अगर खानदान में कोई साबिका झगड़ा चल रहा था तो इस वक्त में खत्म हो जाएगा। खानदान के अफराद में इत्तेहाद बढ़ेगा और आप राहत महसूस करेंगे। लेकिन बुर्ज के निशान में मरीख की आमद और रफ्त गाड़ी की खरीदारी की तरफ इशारा करती है। इसकी वजह से आपा खानदान का कोई और फर्द इस वक्त गाड़ी खरीद सकता है। इसके अलावा आपके घर में कोई अच्छी सरगर्मी मुनक़िद की जाएगी या आप इस दौरान अपने खानदान के अफराद के साथ मजहबी सफ़र पर जा सकते हैं। बुर्ज अक़रब, ये महीना कैरियर डोमेन में स्कॉर्पियो के तहत आने वालों के लिए साजगार रहेगा। सूरज महीने के शुरू में अपने ल्यू के निशान में मुंतकिल होगा और आपके 10वें घर में पना लेगा। आपके कर्मी घर में सूरज के साथ ज़ोहरा का एक ही वक्त में होना काम करने वाले मुलाजमीन को अच्छे नताइज देगा। इसकी वजह से आप अपने तमाम कामों को पूरा करेंगे और मीटिंग में आपकी तजावीज़ को सीनियर्स की तरफ से सराहा जाएगा, जिससे आपके हौसले बुलंद होंगे। उस निशानी के ताजिरों के लिए ये महीना इंतहाई मुनाफा बख्श रहेगा। ख़ास तौर पर महीने के पहले निस्फ में जब सूरज आपके 10वें घर में मुंतकिल होगा, आपको अच्छा मुनाफा हासिल होगा। आप अच्छे करियर के मौके हासिल करेंगे और कारोबार की तौसी के लिए नई हिकमत अमलियों को नाफिज करेंगे।
जब सूरज महीने के दूसरे निस्फ में आपके 11वें घर में दोबारा मुंतकिल होगा तो ये अताद के साथ मिल जाएगा और बुधदीय योगा बनाएगा। इससे आपको अपनी आमदनी बढ़ाने में मदद मिलेगी और आपको गैर मुतवक्के रकम भी हासिल हो सकती है। ई कॉमर्स, आमार्टंग, फैशन, कपड़े, जूते वगैरह के कारोबार से वाबस्ता मकामी अफराद को इस दौरान अपनी जिंदगी में कामयाबी हासिल करने के ज़्यादा इम्कानात होंगे। सितंबर 2022 स्कॉर्पियो वालों के लिए माली मामलात में मिले जले नताइज लाएगा। इस माह आपके दूसरे घर पर राहु का पहलू आपके लिए माली चैलेंज लेकर आएगा। आपको अपनी जिंदगी में पैसे की कमी महसूस होगी। इसके साथ आपको अपनी रकम का एक बड़ा हिस्सा कुछ अहम चीजों पर खर्च करना पड़ सकता है। आपके 12वें घर पर मुख्तलिफ सैयारों के पहलू की वजह से आपके बढ़ते हुए अखराजात आपको ज़हनी दबाव दे सकते हैं। आपको बेकार चीजों पर खर्च करने से गुरेज करना चाहिए और अपने अखराजात को कंट्रोल करने के लिए बजट प्लान तैयार करना चाहिए। आपके दूसरे घर पर मरीख के पहलू की वजह से बहुत से मकामी लोग गाड़ी, कार या मकान खरीदने पर अपनी बड़ी रकम खर्च कर सकते हैं। ताहम कारोबार से वाबस्ता मकामी अफराद की माली हालत अच्छी रहेगी क्योंकि वो इस महीने बेतहाशा पैसा कमाएंगे। ये महीना स्कॉर्पियो वालों के लिए सेहत के मामूली मसाइल लेकर आएगा। राहु आपके छठे घर में मौजूद रहेगा जिसकी वजह से आप इस दौरान जिस्मानी सेहत के मसाइल का शिकार रहेंगे। इसलिए आपको छोटी छोटी बीमारियों के बारे में भी मोहतात रहना चाहिए और ज़रूरत पड़ने पर फौरी तौर पर डॉक्टर से रुजू करना चाहिए। ये महीना आपको पेट से मुतालिक मसाइल से दोचार करेगा, इसलिए अपनी खाने की आदत से मोहतात रहें। पहले से किसी बीमारी में मुब्तला रहने वालों को इस माह अपनी सेहत पर खुसूसी तवज्जो देने की ज़रूरत है, वरना उनकी सेहत खराब हो सकती है। इसके अलावा आपको जंक फूड और इंतहाई गर्म ठंडी अशिया खाने से परहेज करना चाहिए। ये महीना स्कॉर्पियो वालों की मोहब्बत की जिंदगी में मुस्बतीत लाएगा। आपके 5वें घर का मालिक मुश्तरी अपनी ही निशानी मीनस में मौजूद होगा। इससे बिच्छू के लोगों के मोहब्बत के रिश्ते में मोहब्बत बढ़ेगी। स्कॉर्पियो से मोहब्बत करने वाले अपने ताल्लुकात को अगले दर्जे तक ले जाने का फैसला भी कर सकते हैं और अपने महबूब के साथ कुछ वक्त अकेले गुजारने के लिए बाहर जाने का मंसूबा बना सकते हैं। अगर आप अपने आशिक के साथ गिरहें बांधना चाहते हैं तो ये आपके लिए मौजूद वक्त होगा। ताहम अगर आप शादीशुदा हैं तो आपके 7वें घर में मरीख की मौजूदगी और आपके 7वें घर का मालिक ज़ोहरा जो आपके 10वें घर में सूरज के साथ मौजूद है, आपके जीवन साथी के साथ तनाज़ात को जन्म दे सकता है। इस दौरान आपकी तबीयत मगरूर रहेगी जिसकी वजह से आप छोटी छोटी बातों पर नाराज हो जाएंगे और एक दूसरे को कुछ गलत भी कह सकते हैं। पुरसुकून रहने की कोशिश करें और जारहियत को अपना फ़ायदा ना होने दें। सिर्फ ऐसा करने से ही आप अपनी इज़्दिवाजी जिंदगी में मुस्बतीत ला सकेंगे। बुर्ज कौस कैरियर के हवाले से सितंबर का महीना मुस्तकर के लोगों के लिए मौजू रहेगा। आपके 10वें घर का मालिक अतार्द अपने कन्या के निशान और आपके करियर के 10वें घर में मौजूद होगा, जिसकी वजह से कारोबार में सबसे ज्यादा फायदा मकामी लोगों को होगा। ये वक्त आपको कम कोशिशों के बावजूद अच्छा नतीजा देगा और आपका करियर तेजी से आगे बढ़ेगा। ताहम कामयाबी आपकी फितरत में तकब्बुर को जन्म दे सकती है, इसलिए इस वक्त तकब्बुर करने से गुरेज करें, वरना आपका अपने साथी कारकुनों के साथ झगड़ा हो सकता है जो आपकी साख को दारदार कर देगा। इस माह आपके 10वें घर पर मुश्तरी का रुख काम करने वाले मुलाजमीन को कैरियर के अच्छे मौके फराहम करेगा। ये मुद्दत जायदाद के कारोबार से वाबस्ता मकामी लोगों को फ़वाइद फराहम करेगी, लेकिन किसी पर अंधा एतमाद न करें और अपनी हिकमत अमली किसी के साथ शेयर न करें। ये महीना दुख्श वालों के लिए मामूल से बेहतर रहेगा। आपके दूसरे घर में ज़ोहल की मौजूदगी आपको अपने माली मसाइल से निजात दिलाएगी। ये मुद्दत आपके लिए बेपनाह माली फ़वाइद लाएगी। इस दौरान आप किसी गाड़ी, इमारत या ज़मीन से भी फ़ायदा उठा सकते हैं। कुछ मकामी लोग अपने ख़ानदानों से गैर मुतवक्के रकम हासिल कर सकते हैं। ख़ास तौर पर काम करने वाले मुलाजमीन सख्त मेहनत से अपनी आमदनी में इजाफा हासिल कर सकते हैं, जिससे उन्हें अपना बैंक बैलेंस बढ़ाने में मदद मिलेगी। इस अच्छी मुद्दत से बेहतरीन फ़ायदा उठाएं और अपने मुस्तकबिल को महफूज बनाने के लिए अपने पैसे को अच्छे इस्तेमाल में लगाएं। इसके लिए आप अपने बुजुर्गों या माहिरीन की मदद ले सकते हैं। ये महीना सेहत के शोबे में दुख के लोगों के लिए मुस्बत रहेगा। इस दौरान मरीख वर्षभ में मुंतकिल होगा और आपके छठे घर में मौजूद होगा, जिससे आपको सेहत के फ़वाइद हासिल होंगे। तवील अरसे से बीमारी में मुब्तला रहने वाले इस वक्त के दौरान उससे हमेशा के लिए छुटकारा पालेंगे।
इस निशानी के बूढ़े बाशिंदे भी इस माह अपनी सेहत में बेहतरी महसूस करेंगे। इसके बावजूद आपको मशवरा दिया जाता है कि अच्छी सेहत को बरकरार रखने के लिए अपनी ग़िज़ा में पत्तों वाली सब्जियां और माए ग़िज़ाएं शामिल करें। सितंबर 2022 दुख से मोहब्बत करने वालों के लिए मुश्किल होगा। आपके 5वें घर में राहु की मौजूदगी आपकी मोहब्बत की जिंदगी में परेशानियों का बाइस बन सकती है और आप अपने साथी के साथ तनाज़ों में पड़ सकते हैं। आप दोनों एक दूसरे पर शक करेंगे जो आपके रिश्ते की बुनियाद को कमज़ोर कर देगा। अगर आप अपने रिश्ते को बचाना चाहते हैं तो बेहतर होगा कि गलत फहमियों को दूर करने के लिए अपने आशिक से बात करें और उनके नुक्ता नज़र को भी समझने की कोशिश करें। जहां तक शादीशुदा बाशिंदों का ताल्लुक है, आपके 7वें घर का मालिक अतार्द अपनी अलामत कन्हैया में होगा और आपके मरकजी घर में बैठा होगा। इससे आपकी इज़्दिवाजी जिंदगी में मुस्बतीत आएगी और आप अपने जीवन साथी के साथ मियारी वक्त गुजारेंगे। लेकिन जब महीने के पहले निस्फ में सूरज आपके 9वें घर में ज़ोहरा के साथ वाक़े होगा तो आप ज़्यादा जारहाना हो जाएंगे, जो आप और आपके शरीक हयात के दरमियान मसाइल पैदा कर सकता। लेकिन जब महीने के आखिरी निस्फ में सूरज आपके 10वें घर में मुंतकिल होगा और अतार्द के साथ मिल जाएगा, बुधदीय योगा तश्कील पाएगा। इसकी वजह से आपको अपने जीवन साथी से बेपनाह मोहब्बत और ताउन मिलेगा। लिहाजा नामुवाफिक हालात में सब्र करें और बेहतर वक्त का इंतज़ार करें। बुर्ज जद्दी, ये महीना कैरियर के लिहाज से मकर के लोगों के लिए मिला जला रहेगा। आपके 10वें घर का मालिक ज़ोहरा माह के शुरू में सूरज के साथ आपके 8वें घर में मुंतकिल होगा। इसकी वजह से ये मुद्दत आपके काम की जगह पर कुछ रुकावटें ला सकती है। इस पर काबू पाने के लिए आपको मोहतात रहने की ज़रूरत है और काम की जगह पर आपकी पैदावारी सलाहियत में कमी नहीं। महीने के आखिरी निस्फ में जब सूरज दोबारा मुंतकिल हो जाएगा और आपके 9वें घर में दाखिल होते वक्त अतार्द के साथ मिल जाएगा, बुधदीय योगा तश्कील पाएगा। इसकी वजह से काम की जगह पर किस्मत आपके साथ रहेगी और हालात बेहतर होंगे। ये वो दूर होगा जब आप अपने तमाम कामों को वक्त पर मुकम्मल करेंगे और अपनी तमाम हिकमत अमलियों को कामयाबी से नाफिज करेंगे। ये वक्त ख़ास तौर पर फिल्म या तफरीही सनत से वाबस्ता तलबा के लिए अच्छा रहेगा। ताहम आपके 10वें घर में कीटों की मौजूदगी और आपके 4थे घर में बैठते वक्त आपके 10वें घर पर राहु का पहलू कुछ मकामी लोगों के करियर में कुछ चैलेंजों को जन्म देगा। इसलिए इस निशानी के काम करने वाले मुलाजिमीन और ताजिरों दोनों को मोहतात रहने की ज़रूरत है और इस दौरान किसी तनाज़ा में पड़ने से गुरेज करना चाहिए। ये महीना मकर के लोगों के माली मामलात के लिए साजगार रहेगा। सूरज महीने के पहले निस्फ में ज़ोहरा के साथ मिल जाएगा और वो आपके दूसरे घर का रुख करेंगे। इसकी वजह से आपको कहीं से अच्छी खासी गैर मुतवक्के रकम हासिल हो सकती है। काम करने वाले मुलाजिमीन अपनी तंजीम से तनख्वाह में इजाफा अवार्ड हासिल करने में कामयाब होंगे। दूसरी जानिब सूरज की अपनी निशानी लियो में मौजूदगी और आपके दूसरे घर में उसका पहलू मकर के कारोबारी अफराद को मुनाफा बख्श नताइज देगा। जब सूरज महीने के आखिरी निस्फ में दोबारा गुजरेगा और आपके 9वें घर में अताद के साथ जड़ जाएगा तो आपकी आमदनी के ज़राए बढ़ेंगे। आप अपना पैसा लगाने और अपने मुस्तकबिल को महफूज बनाने का फैसला करेंगे। सूरज और अतार्द का मिलाप बुधदीय योगा बनाएगा, इसलिए हिस्स बाजार से वाबस्ता मकामी लोग अच्छा मुनाफा कमाएंगे। मकर के लोग इसमें जिस्मानी सेहत के मसाइल का शिकार होंगे। आपके 6ठे घर का मालिक अतार्द अपनी ही अलामत कन्हैया में होगा और आपके 9वें घर को फ़आल बनाएगा। अतार्द की अपनी निशानी में मौजूदगी आपकी बिगड़ती सेहत में बेहतरी की वजह बन जाएगी। लिहाजा आपको पूरे महीने के लिए अपनी सेहत के बारे में ज्यादा मोहतात रहने की जरूरत होगी। तवील बीमारियों में मुब्तला रहने वाले इस माह मजीद परेशानियों से गुजर सकते हैं। खानदान के बूढ़े अफराद को भी सेहत के मसाइल का सामना करना पड़ सकता है, लिहाजा इस दौरान उनका ख्याल रखें। आपको अपनी खाने की आदत पर भी तवज्जो देने की जरूरत है और बासी या जंक फूड के इस्तेमाल से परहेज करना चाहिए। अब बदलते मौसम की वजह से नज़ला या खांसी जैसी मामूली बीमारी का शिकार हो सकते हैं। कुछ मकामी लोग आंखों से मुताल्लिक बीमारियों से परेशान हो सकते हैं। ये महीना मकर के लोगों की खानदानी जिंदगी में अच्छे नताइज लाएगा। आपकी निशानी का मालिक ज़ोहल माह के शुरू में आपकी निशानी में मौजूद है और उसकी मेहरबानी से आप अपनी घरेलू जिंदगी में साजगार नताइज हासिल करेंगे। ये वो वक्त होगा जब खानदान का माहौल पुरअमन होगा और खानदान के अफराद में इत्तेहाद होगा। इसके अलावा माह के पहले निस्फ में सूरज ज़ोहरा के साथ जुड़ेगा और आपके दूसरे घर का रुख करेगा। नतीजे के तौर पर
मकामी लोगों के घर में एक अच्छी तकरीब का एहतमाम किया जा सकता है। जब सूरज आपके नवीं घर में अताद के साथ महीने के आखिरी निस्फ में मुंतकिल होगा तो आपको अपने छोटे बहन भाइयों का ताउन हासिल होगा। ये ताउन आपके एतमाद और हिम्मत में इजाफा करेगा। ताहम ज़ोहल छोटे ख़ानदानी मसाइल को भी जन्म दे सकता है, लिहाजा आपको ख़ानदान में अमन बरकरार रखने की ज़रूरत होगी। इसके अलावा कोई भी बड़ा ख़ानदानी फ़ैसला लेने से पहले ख़ानदान के बड़े अफराद से मशवरा करें। बुर्ज दलो बुर्ज के लोगों को इसमें फ़ायदामंद नताइज हासिल होंगे। आपके 10वें घर का मालिक मरीख आपके चौथे घर में मौजूद है और आपके 10वें घर पर एक पहलू है जिसकी वजह से आपका करियर तेज़ी से तरक्की करेगा और आपको अपने काम की जगह पर अच्छे नताइज हासिल होंगे। ये मुद्दत ज़मीन, इमारत, गाड़ी के कारोबार से वाबस्ता मकामी लोगों को मुनाफा देगी। इस माह आपके 10वें घर पर मुश्तरी का पहलू आपको काम की जगह पर अपने तमाम कामों को पूरा करने में मदद देगा। अगर आप अपना काम तब्दील करना चाहते हैं या अपने काम के शोबे से मुताल्लिक कोई अहम फैसला लेना चाहते हैं तो ये अच्छा वक्त रहेगा। ये मुद्दत दरामद व बरामद से वाबस्ता ताजिरों को अच्छे मौके फराहम करेगी। महीने के शुरू में सूरज अपनी अलामत लियों में मौजूद होगा और आपके 7वें घर में ज़ोहरा के साथ मिल जाएगा, जिसकी वजह से सरकारी मुलाजिमीन अपनी किस्मत पर एहसान करेंगे। लेकिन जब सूरज महीने के आखिरी निस्फ में दोबारा उबूर करेगा और आपके 8वें घर में अतार के साथ मिल जाएगा तो मल्टी नेशनल कंपनियों में काम करने वाले गैर मुल्की तिजारत से वाबस्ता मकामी लोगों को बेहतरीन नताइज हासिल होंगे। सितंबर इस महीने कोबिब वालों को अच्छे माली फवाइद देगा। आपके दूसरे घर में मुश्तरी की आमद और रफ्त आपको माली फायदा देगी। मुश्तरी का फजल आपको गैर मुतवक्के मुनाफा भी दे सकता है। बहुत से मकामी लोग अपने खानदानों से मुनाफा हासिल करेंगे। इस माह जब अतार्द का रुख आपके दूसरे घर पर आएगा तो आप अपने अखराजात पर काबू पाने और पैसे बचाने में कामयाब होंगे। इससे आपके कम बैंक बैलेंस को बेहतर बनाने में मदद मिलेगी। आपके दूसरे घर पर ज़ोहल के पहलू की वजह से आपको कभी कभार माली मसाइल का सामना करना पड़ सकता है, लेकिन आप अपनी बचत की मदद से इससे छुटकारा पाएंगे। ये महीना सेहत के शोबे में इकवीरीश वालों के लिए मुश्किल साबित होगा। मुश्तरी का पहलू आपके छठे घर पर पड़ेगा। इसकी वजह से आपको नज़ला और खांसी जैसी मामूली बीमारियां लाहिक हो सकती हैं। इसलिए बदलते मौसम में आपको मोहतात रहने की ज़रूरत है और अपनी सेहत का अच्छी तरह ख्याल रखना चाहिए। आपके छठे घर में ज़ोहल के पहलू की वजह से आपकी साबिका बीमारी आपको परेशान कर सकती है। कुछ मकामी लोग जोड़ों के दर्द, किट, चोट, हादसे का शिकार हो सकते हैं। इसलिए जंक फूड से परहेज करें और इस महीने बाहर जाते हुए गाड़ी चिल्लाते हुए एहतियात करें। इस माकूब के लोगों की मोहब्बत की जिंदगी मुस्बत रहेगी। आपके 5वें घर का मालिक अतार्द 8वें घर में मुंतकिल होगा, जो मोहब्बत करने वालों के दरमियान उनकी मोहब्बत की जिंदगी में शकूक और शुबहात पैदा करेगा। इसलिए इस माह जोड़े को एक दूसरे को सबसे ज्यादा समझने की जरूरत है। मोहब्बत का मोहसिन ज़ोहरा आपके 7वें घर में सूरज के साथ मुंतकिल हो रहा है, जो आपकी फितरत में जारहियत लाएगा। लेकिन जब सूरज आपके 8वें घर में सितंबर के वस्त के बाद अताद के साथ मिल जाएगा तो आपके ताल्लुकात में बेहतरी आएगी और आपको अपने ताल्लुकात को कारामद बनाने के बहुत से मौके मिलेंगे। आप इस अरसे के दौरान अपने साथी के साथ मियारी वक्त गुजारेंगे और यहाँ तक कि एक साथ कहीं बाहर जाने का इरादा भी कर सकते हैं। शादीशुदा लोगों के 7वें घर में सूरज और ज़ोहरा का मिलाप आपकी इज़्दिवाजी जिंदगी में कुछ नाराजगी ला सकता है। आपके 7वें घर पर मरीख के पहलू की वजह से आप और आपके शरीक हयात के दरमियान मामूली झगड़ा बड़े तनाज़ों की शक्ल इख्तियार कर सकता है। इस सूरत हाल में अगर आप पुरसुकून रहें और अपने गुस्से पर काबू रखें तो बेहतर होगा। मुश्तरी की उसके अपने मीनस के निशान में मौजूदगी और आपके दूसरे घर में उसकी आमद और रफ्त आपकी खानदानी जिंदगी में बेपनाह मुस्बत लाएगी। मुश्तरी की मेहरबानी से खानदान में कोई नेक काम मुकम्मल हो जाएगा। मुश्तरी की अपनी निशानी मीनस में मौजूदगी आपके अंदर और आपके खानदान के अफराद में मजहबी रुझान को फरोग देगी, जिसकी वजह से आप मजहबी सरगर्मियों में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेंगे। बहुत से मकामी लोग अपने अहल खाना के साथ मजहबी सफर पर जाने का इरादा भी कर सकते हैं। आपके दूसरे घर पर अताद के पहलू की वजह से खानदानी माहौल खुशगवार रहेगा। ताहम जब महीने के तीसरे हफ्ते में सूरज आपके 8वें घर में अताद के साथ मुंतकिल हो जाएगा तो खानदान में कुछ तनाज़ात पैदा हो सकते हैं। इसलिए इस वक्त हर मसले को तहम्मुल से हल करने की कोशिश करें।
برج हूत कैरियर के शोबे में मैश वालों के लिए सितंबर का महीना मुस्बत नताइज लाएगा। आपके 10वें घर का मालिक मुश्तरी आपकी निशानी में मौजूद होगा और आपके पहले घर को चालू करेगा। ऐसे में मुश्तरी की मौजूदगी काम की जगह पर काम करने वाले मुलाजमीन की पोजीशन को सबसे ज्यादा मजबूत करेगी। इसकी वजह से आपको अच्छे करियर के मौके मिलेंगे जो आपकी जिंदगी में तरक्की करने में मदद करेंगे। इसके साथ साथ आपके कर्मी घर पर मरीख का पहलू आपको खुशकिस्मत बनाएगा और आपको आपके काम के मैदान में तरक्की हासिल करने में मदद मिलेगी। कारोबार से वाबस्ता मकामी अफराद भी इसमें मुस्बत दूर से लुत्फ अंदोज होंगे। इसके अलावा तालीम से मुताल्लिक खिदमात में काम करने वाले मकामी अफराद को भी अपने करियर में अच्छे फ़वाइद हासिल होंगे। ये वो वक्त होगा जब आपको कम कोशिशों के बावजूद अच्छा नतीजा मिलेगा। सैयारों की पोजीशन मैश लोगों की माली जिंदगी में मिले जले नताइज लाएगी। माह के शुरू में दूसरे घर में राहु की मौजूदगी आपके अखराजात में बेपना इजाफा करेगी। आप इस माह अपनी ख्वाहिशात को पूरा करना चाहेंगे जिसके लिए आप अपनी बड़ी रकम खर्च करेंगे। कुछ मकामी लोग अपनी खानदानी जिम्मेदारियों को पूरा करने के लिए रकम भी खर्च कर सकते हैं, लेकिन बाद में पैसे की कमी की वजह से आपको माली मुश्किलात का सामना करना पड़ सकता है। इसलिए अपने अखराजात पर नजर रखें और एक अच्छे बजट प्लान के मुताबिक रकम खर्च करें। ताहम आपके 11वें घर में ज़ोहल की मौजूदगी आबाई जायदाद के हुसूल की तरफ इशारा कर रही है। मैश के लोग इस माह सख्त सेहत से लुत्फ अंदोज होंगे। माह के पहले निस्फ में सूरज और ज़ोहरा का छठे घर में मिलाप आपकी बिगड़ती सेहत में बेहतरी लाएगा, जिसकी वजह से किसी भी तवील बीमारी में मुब्तला रहने वाले राहत महसूस करेंगे। आपको मशवरा दिया जाता है कि अपनी दवाएं वक्त पर लें और ज़रूरत पड़ने पर डॉक्टर से रुजू करें। ताहम जब सूरज आपके 7वें घर में दोबारा दाखिल होगा और महीना के आखिरी निस्फ में अताब के साथ मिल जाएगा तो आप मामूली बीमारियों में मुब्तला हो सकते हैं। अपने खाने पीने की आदत का ख्याल रखें और असबी अमराज में मुब्तला मकामी अफराद को जल्द अज जल्द डॉक्टर से रुजू करने की ज़रूरत होगी। ये मुद्दत आपके खानदान के बड़े अफराद की सेहत में बेहतरी लाएगी। मैश के लोग मोहब्बत के मामलात में मिले जले वक्त से गुजरेंगे। मुख्तलिफ सैयारों के मनफी असरात आप और आपके साथी के दरमियान तनाज़ात पैदा करेंगे। गलत फहमियों की वजह से आप दोनों एक दूसरे पर शक करते नजर आएंगे। अपने रिश्ते को मजबूत रखने के लिए आपको एक दूसरे पर भरोसा करने की जरूरत है। इसके लिए एक साथ वक्त गुजारने की कोशिश करें और मुनासिब बातचीत के जरिए अपने मसाइल हल करें। शादीशुदा अफराद की शादी के 7वें घर में अतार्द की आमद माह के शुरू में मियाँ बीवी के दरमियान कुछ मसाइल पैदा करेगी, लेकिन जब सूरज एक बार फिर से गुजरेगा और महीने के आखिर में 7वें घर में ज़ोहरा के साथ जड़ जाएगा, सूरत हाल में बेहतरी आएगी। इस वक्त आपके 7वें घर में बनने वाला बुध हदीय योगा आपके जीवन साथी की तबीयत में मिठास लाएगा। इसकी वजह से आप दोनों एक साथ अच्छा वक्त गुजारेंगे और कहीं बाहर जाने का मंसूबा भी बना सकते हैं। मैश के बाशिंदों को सितंबर 2022 में अपनी खानदानी जिंदगी में मिले जले नताइज हासिल होंगे। सायादार सैयारा राहु आपके दूसरे घर में मैश के निशान में वाक़े है। इसकी वजह से खानदान में झगड़े हो सकते हैं। कुछ मकामी लोग अपने खानदान के अफराद के साथ बड़े झगड़ों में भी पड़ सकते हैं, जो खानदान में उनकी शबी और साख को दारदार कर देगा। आपके लिए बेहतर रहेगा कि इस दौरान घर वालों से झगड़ा न करें। इसके अलावा की तो आपके 8वें घर में मौजूद रहेगा जो खानदान में तनाज़ात को जन्म देगा। ये आपको परेशान कर देगा और आप अपना ज्यादातर वक्त अपने घर से दूर गुजारेंगे। कोशिश करें कि कोई भी अहम खानदानी फैसला किसी से मशवरा किए बगैर न लें, वरना हालात आपके खिलाफ हो सकते हैं। सितंबर के महीने में तमाम बुरूज के लिए मुबारक सदका 7 अजनास का है। वजीफा माह सितंबर में दुरूद तंजीना कसरत से पढ़ना बेहतर है।